Good morning and Assalamu alaikum students. Today the date is 9 September 2020 and the day is Wednesday. We are in the science class 6. In the last lecture we have discussed about the process of photosynthesis. What do plants need to grow well? In this lecture we discussed that plants need sunlight, carbon dioxide and water to make food. This sunlight is trapped by the chlorophyll, therefore the color of the plant is green just because of the chloroplast present in the plant to trap sunlight. And then we said that food that is present in the plant is stored in the form of starch, and this food is stored in ginger, stem, roots, and we have the number of the examples of stored food in plant. For the exchange of gases, we discussed the tiny openings known as stomata. And at the last, we discussed the point about the starch, the stored food in the plant. Now there is the topic which is testing for starch, page number 58. The food that is stored in the plant, how can we test it? We can test it by the following process. Testing for starch. To find out whether a leaf has made food, we can test it for starch by using iodine solution. Highlight करें इस point को. If starch is present, it means that the leaf has made food. अगर हम लोगों ने ये ऑब्ज़र्व करना है या ये देखना है कि हमारे लीफ के अंदर फूड स्टोर हुई है स्टार्च की फॉर्म में या नहीं, तो उसके लिए हम लोग आयोडीन टेस्ट करते हैं. ठीक है, आयोडीन का सॉल्यूशन लेते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, और अगर स्टार्च प्रेजेंट होती है हमारे सॉल्यूशन के अंदर आयोडीन का टेस्ट करने के बाद, तो इसका मतलब है कि जो हमारा लीफ है वो फूड बना रहा है. यू कैन सी 2 टेस्ट ट्यूब्स ऑन फिगर 3.7 जस्ट अबव द टॉपिक टेस्टिंग फॉर स्टार्च. One is the blue and second is the brownish color. Iodine solution is yellowish brown. Iodine solution turns blue black when starch is added to it. ठीक है, हाईलाइट करें इसको कि जो आयोडीन का एक्चुअल कलर है वो येलोश ब्राउन होता है, लेकिन जब स्टार्च को इसके अंदर ऐड करवाते हैं तो ये ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती है. 2 leaves on the left have been prepared and tested for starch using iodine solution. Which leaf has made food? वो कह रहे हैं कि यहाँ पे 2 सॉल्यूशन या आपके पास 2 लीफ है फिगर 3.8 में. विच लीफ हैज़ मेड फूड. एक आपको ये दोनों के कलर डिफरेंट है. नाउ इट्स योर टर्न टू फाइंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. नेक्स्ट इज द think about it. A potted plant is kept in the dark for 48 hours. One of the leaves is then covered with black paper which has cut out holes as shown below. कि ये एक पत्ता आपको नज़र आ रहा है, इसके ब्लैक पेपर रखा गया और 2 इसमें सुराख किए गए हैं. ठीक है. द प्लांट इज एक्सपोज टू स्ट्रॉन्ग सनलाइट फॉर सेवरल आवर्स. द लीफ कवर्ड विद ब्लैक पेपर इज प्लक्ड ऑफ एंड टेस्टेड for starch using iodine solution. The outline of the leaf is drawn below. Shade the part which turn the blue black. ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास ऊपर लीफ नज़र आ रहा है, इसमें लीफ को ब्लैक पेपर से कवर किया गया और 2 इसमें सुराख किए गए हैं. नीचे आपने जस्ट वो वाला पार्ट ड्रॉ करना है जिसके अंदर फूड स्टोर होगी या जो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा. आपने सिर्फ वही पार्ट ड्रॉ करने हैं एंड इट इज़ क्वाइट क्लियर कि जो डार्क पार्ट है वो हाईलाइट नहीं होगा, ओनली ग्रीन पार्ट विल बी हाईलाइटेड. आपने सिर्फ ग्रीन पार्ट को यहाँ पे हाईलाइट कर देना है. नेक्स्ट वी हैव ट्राई इट आउट इन योर ग्रुप. Plan an investigation to find out whether plants can carry out photosynthesis using artificial light instead of sunlight. You can use the guidelines below to help you plan your investigation. Write down the aim of your investigation. Discuss and decide how you are going to carry out your investigation, what you are going to observe and the material you need. Write down the steps of your investigation and the material you need. It's your activity. You have to find out the answer of the question by keep in mind the previous lectures.
The food produced by plants during photosynthesis becomes energy source for animals which feed on plants directly or indirectly. हाईलाइट करें कि जो भी प्लांट फूड प्रिपेयर करते हैं वो फूड एनिमल्स उन प्लांट्स को खाते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव द एनिमल्स लाइक डियर, एलिफेंट, ठीक है, एंड मैनी अदर गॉड्स, काउस, ये सारे हम प्लांट्स खाते हैं. तो वो कह रहे हैं कि जो भी फूड है जो प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो उन पर फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनिमल्स फीड करते हैं. प्लांट्स themselves make use of sunlight energy from the sun to make food. Thus the energy stored in plants and animal is derived from the sun. हाईलाइट करें इस पॉइंट को कि प्लांट्स और एनिमल के अंदर जो भी एनर्जी स्टोर्ड होती है वो डायरेक्टली प्लांट्स पे और इनडायरेक्टली एनिमल्स के अंदर सनलाइट की वजह से ही स्टोर होती है. Next we have the key points. Plants need light to grow well. Photosynthesis is the process by which plants use light energy, carbon dioxide and water to make food. The food produced by plants is in the form of sugar. Oxygen gas is also produced during photosynthesis. The excess sugar produced is stored as starch in the leaves and other parts of the plants. The food produced by plants during photosynthesis become the energy source for animals. All these points have been discussed. The next point is plants and nutrients. The photographs below show a picture plant and a Venus flytrap. They are called insectivorous or carnivorous plants because they consume insects or small animals. ठीक है, ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं उनको हम लोग इंसेक्टिवरस प्लांट्स का नाम देते हैं. और हमारे पास यहाँ पे इंसेक्टिवरस प्लांट्स की 2 एग्जाम्पल्स दी गई हैं, विनस फ्लाईट्रैप एंड पिक्चर प्लांट. Can these plants make food? If they can, why is there a need them to consume animal? क्या ये प्लांट्स अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं? चले फिगर 3.9 पिक्चर प्लांट है. इंसेक्ट्स और स्मॉल एनिमल्स फॉल इनटू द पिक्चर लीव्स शेप टू लुक लाइक जस्ट jugs of the picture plant and are digested by the digestive juice inside. The plant then absorb the nutrients of the digested animals. ठीक है, ये आपको ये फिगर 3.9 नज़र आ रही है पिक्चर प्लांट की. इसका शेप आपको जस्ट लाइक द जग, ठीक है, तो जग की तरह की आपको उसकी शेप नज़र आ रही है. जो भी इंसेक्ट्स होता है वो हमारा इसके अंदर ट्रैप हो जाता है. जब भी इंसेक्ट इसके अंदर ट्रैप हो जाता है तो ये हमारा प्लांट है, ये अपने ओपनिंग को क्लोज कर देता है और फिर हमारा प्लांट डाइजेस्टिव जूस को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं. और जो डाइजेस्टिव जूस है वो इस इंसेक्ट्स पर एक्ट करते हैं और इससे न्यूट्रिएंट्स फिर को एब्सॉर्ब करते हैं. Thus it is known as the pitcher plant because its shape is like the pitcher or the jug we use in the routine life. Okay. Next figure 3.10 Venus flytrap. The leaf of the Venus flytrap is divided into 2 halves to form a trap which snaps shut when an insect lands on it. ये आपको नज़र आ रही है ओपनिंग है प्लांट की. इट हैज़ 2 हाफ जस्ट लाइक अ बटरफ्लाई लाइक शेप. तो वो कह रहा है जैसे ही कोई एनिमल इसके ऊपर आकर बैठता है तो ये अपने आप को शट कर लेता है, अपने आप को क्लोज कर लेता है अपनी ओपनिंग को. द लीफ ओपन्स अगेन व्हेन द इंसेक्ट हैड बीन डाइजेस्टेड. जब पूरे का इंसेक्ट वो डाइजेस्ट हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, तो ये प्लांट फिर से खुल जाता है. Insectivorous plants have chlorophyll and can carry out photosynthesis. हाईलाइट करें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के अंदर भी क्लोरोफिल होती है और ये भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं. दे ट्रैप इंसेक्ट्स और अदर एनिमल्स टू गेट न्यूट्रिएंट्स बिकॉज दे यूजली ग्रो इन सॉइल विच आर पुअर इन न्यूट्रिएंट्स. हाईलाइट करें कि ये मोस्टली ऐसे सॉइल में ग्रो कर रही होती हैं जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स कम होती है और इनको न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं. तो इसलिए ये एनिमल्स को ट्रैप करते हैं और उनसे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं. विदाउट न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स कैन नॉट ग्रो हेल्थीली. प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ मिनरल सॉल्ट्स थ्रू देयर रूट्स. व्हाट इज एन अदर फंक्शन ऑफ रूट्स बिसाइड देयर एब्जॉर्बिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. सॉइल एंड मिनरल सॉल्ट्स. सॉइल इज फॉर्म्ड व्हेन रॉक्स वेयर डाउन ड्यू टू वेदरिंग. जब जो रॉक्स हैं उनके ये
आसान अल्फाज में जब इनके ऊपर ये टूटना शुरू हो जाती हैं ड्यू टू वेदरिंग या थंडरिंग, ठीक है, ये बिजली चमकने की वजह से या ख़राब मौसम की वजह से, द सॉइल यूज्ड ग्रेटली influences the growth and development of plant. Soil provides an anchoring medium for many plants and plant absorb water and mineral salts from the soil. हाईलाइट करें, ये तो हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि हम जितने भी पौधे हैं, अपने जितने भी प्लांट्स हैं, उन सबको सॉइल के अंदर ही प्लांट करते हैं सो डैट दे कैन गेट द मिनरल एंड द वाटर. तो ये तो हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन भी है. साइंस टिडबिट्स हैं. प्लांट्स कैन बी ग्रोन विदाउट सॉइल एज इन हाइड्रोपोनिक एंड एरोपोनिक. हाईलाइट करें. In hydroponic, plant roots are immersed in nutrient-rich solution, while in aeroponic, plant roots are exposed to the air and periodically separate with nutrient-rich solution. जैसे जो हम हमारी क्रॉप्स वगैरह हैं उनको हम लोग एयर में करते हैं और आपने देखा कि फिर वहाँ पर फसलों के ऊपर स्प्रे किया जाता है टू गिव देम द न्यूट्रिएंट्स. इट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. इट इज़ ऑफनली आस्क्ड दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोपोनिक्स एंड एरोपोनिक्स. You have to learn it. It's an important question. Figure 3.11, roots absorb water and nutrients from the soil and anchor the plant to the soil. ठीक है जी, यहाँ पे रूट्स होती हैं प्लांट के विच इज़ यूज्ड टू plant them under the ground, and it helps the plant to anchor at one place and absorb nutrients and water from the soil. It was our overall today's lecture. If you find any difficulty in understanding the point, you can highlight the point and can ask. Thank you.